is your question number third. Question number third is write the coordinates of the vertices of each of the following these adjoining figures. What is the question? Write the coordinates. We have to write the coordinates in question number third of the vertices of each of the adjoining figure. You can see this is the graph of this question number third. And in this figure, you have to observe it carefully. And accordingly, you have to find out the coordinate of the vertices. जितने भी vertices adjoining figures हैं एंड जितने भी इसमें देख सकते हो आप vertices हैं इन सब की coordinates find करनी है आपको. Okay. Now, you all of you see the graph and you can tell now what will be the coordinates of A. I am asking to you all that coordinates of these all letters. Now you tell me what is the coordinate of A? 2.2 and 0. Yes. When you will find the coordinate of A, you know that A is plotting on this x-axis. So it means your x की value है वो क्या है 2 है and your y will become 0. So 2 and 0 will be the answer of this A. Now you say coordinate of B. Ma'am, 2 and 3. Yes, this is your x-axis. तो पहले x को आपको देखनी है. This is 2 and y किस पॉइंट से क्रॉस कर रही है ये दोनों किस मीट मतलब किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं एट दिस b. तो आपको b की कोऑर्डिनेट बताना तो पहले x एक्सिस को देखना होता है तो x की 2 दी हुई है कोऑर्डिनेट and y is 3. So 2 and 3 will be your answer. Now say C. Ma'am, 2 and 3. Okay, Sachin, नहीं 2 and 3 C का नहीं होगा. Sachin, now you can say here. Yes, what will be the coordinate of C? Mm, 0 Ma'am, and 03. Yes, 0, 3 is the right answer. Now say Q. Ma'am, 61. Ma'am, 6 and 6 3. and 1. 6 and 1. Okay. Hmm? Q will be 6. 6 आपकी x एक्सिस आपको ये देखनी है ना कि ये लाइन कहाँ से क्रॉस कर रही है 6 से क्रॉस कर रही है या अगर आपको पॉइंट से Yes, क्रॉस ma'am. एंड दूसरा आपका y आपका 1 से लाइक 1 से पास हो रहा है और ये दोनों मिल रहे हैं Q पे तो इट मींस 6 and 1 will become the coordinate of this Q. Now say P. 4 and 3. 4 and 3. 4, 3. R. Ma'am, Ma'am, 65. 6 and 5. S. Ma'am, 4 and 7. Ma'am, 47. 4, 3, 7. Now 7. say K. कौन सा? 10, 5. Ma'am, 10 and 10 and 5. Okay. L. 5. 7, 7. Ma'am, 7, 7. 7. M. 10, 8. Ma'am, Ma'am, 10 and 8. Very good. So this is how ना you will find the coordinate of all these letters. But यहाँ पे letters की जगह पे actually दिया हुआ है adjoining figure. तो adjoining figure में जितने भी होंगे coordinates होंगे वो सारे उन सभी coordinates को आपको find करने हैं. Okay. Question number second. I hope all of you have done it. Yes, yes, ma'am. ma'am. Second also is there any inquiry you have? In second I'm asking. Okay. Now you tell me. One question is here. Find the coordinate of the points uh, at which this line meets the x-axis and y-axis. Now you tell me when you have joined the line and passes through these two coordinates, then what will be the coordinates of the points at which these line meets at x-axis and y-axis? Tell me the coordinates. वो कौन से coordinate होंगे? आपने अगर इसको solve किया होगा, then definitely you will get some coordinate when these two 5 coordinates and get this 0. And ma'am, x एक्सिस का होगा मैम 5 and 0 और मैम y एक्सिस good. का होगा 0 and 5. Good, very good. Yesterday I told you like first तो आपको क्या करनी इस क्वेश्चन में क्या करनी थी पहले draw the line passing through the 2 3 and 3 2. Okay, so 2 3 and 3 2 से जो पास हो रहे हैं उसको आपको क्या करनी है लाइन ड्रॉ करनी है. तो पहले तो आपको प्लॉट करनी होगी. So 3 2 पहले आपने प्लॉट करा 3 and this is your 2
फिर 2 3 हमने प्लॉट किया एंड पासिंग थ्रू दीज कोऑर्डिनेट्स। तो आप लाइक इससे ऐसे लाइक सिंपली आपको क्या करने, लाइन ड्रॉ करनी है एंड यू हैव टू चेक देयर ये कहाँ से पास हो रहा है एग्जैक्टली। एक्चुअली मैंने यहाँ पे प्लेन पेपर में करा है तो हो सकता है कुछ मिसिंग होंगे, बट अगर आप ग्राफ में करोगे तो एग्जैक्टली आपकी ग्राफ राइट ड्रॉ होगी। सो हियर these two coordinates you can see this line, अगर जब मैंने लाइन ड्रॉ करी, okay, from these two coordinates it is passing through this 5 0, you can see ये 5 0 से पास हो रहा है and second will be your 0 and 5। तो x एक्सिस पे कौन से कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है, 5 0 you can see, and at y axis it will passes it 0, through 5. 0 and 5। Okay, so this is how you will solve question number second. Now question number 4, this also I am discussing. So और false correct that are false, okay, so आपको correct भी करनी है, पहले तो बतानी है आपको कि whether which statement is true and which statement is false. First is a point whose x coordinate is 0, okay, अगर आपकी x coordinate 0 होती है and y coordinate is non zero, will lie on the y axis. Yes, ma'am. Ma'am. Obviously yes, because यहाँ पे x 0 दी हुई है and y coordinate non zero है, तो वो Yes, किस पे ma'am. lie True करेगी? होगा. Okay, very good. So it is true. Now, in place of it, if I say the point whose x coordinate is non-zero and y coordinate is 0 will lie on the y axis. मैम No, ये ma'am. वाला Ma'am, false। false होगा. नहीं होगा. False. Very good. Now I am saying one more statement. A point whose x coordinate is non-zero and y coordinate is 0 will lie on the x axis. Ma'am, true होगा. Ma'am, true. यस, एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने नॉन जीरो बताया एंड वाई कोऑर्डिनेट को मैंने जीरो बताया, तो ऑब्वियसली दैट विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस। नाउ Yes, सेकंड ma'am. स्टेटमेंट, अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे अब जीरो दिया हुआ है एंड एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5 दी हुई है, विल लाई ऑन वाई एक्सिस। Ma'am, Yes. false. Yes, ma'am. Then you please correct this No, statement. no. Please, today no any student will intervene at my class. It's a request to all of you. ओके, नाउ टेल मी सेकंड क्वेश्चन में क्या है, अगर वो फॉल्स होते हैं तो यू हैव टू करेक्ट दैट फॉल्स स्टेटमेंट। देन से अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज जीरो, वाई कोऑर्डिनेट अगर जीरो होता है एंड एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 5 होती है, तो क्या वो लाई करती है आपकी वाई एक्सिस पे? अगर ये फॉल्स है मैम ये देन होगा मैम, अ पॉइंट हुज y coordinate is non zero and x coordinate is 0 lie on the y axis। वेरी गुड। तो आप यहाँ पर आई मीन टू टाइप से आप स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हो। फर्स्ट यू कैन से लाइक जस्ट सचिन हैज टोल्ड नाउ, अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज नॉन जीरो, अगर ये नॉन जीरो हो एंड एक्स कोऑर्डिनेट आपकी जीरो हो, देन इट विल बिकम सॉरी इट विल लाई ऑन द वाई एक्सिस। नेक्स्ट हम इसमें डायरेक्ट कह सकते हैं अ पॉइंट whose y coordinate is 0 and x. Now question number third, the coordinates of the origin are 0 0. Yes, Ma'am, ma'am. true. मैम ट्रू होगा। It is very true. It is simple. The coordinates of origin. So you can say this statement when I have started this chapter, but where origin hota kya actually? Where the x-axis and y-axis meet at that point is said to be a origin. इसको कहते हैं origin. And origin की अगर coordinate find करनी होती है तो भी x भी 0 and y भी 0 है, तो इसकी जो coordinate होगी origin की वो क्या होगी, 0 0. So the third, जो third आपकी statement है coordinate of origin are 0 0, that is right. Okay, so should I understand this 15.2 exercise have been done? यस मैम। Yes, ma'am. Ma'am. Okay,
इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? अगर कुछ अदर क्वेश्चन आपके पास होंगे देन यहाँ पर आप आस्क कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं, थोड़े से मैं डिस्कस करती हूँ एंड देन हम कुछ क्वेश्चंस को भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पास करने वाले हैं। मैम ये सिलेबस का मैम लास्ट चैप्टर है। या दिस इज एक्चुअली आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं एक्सेप्ट वन, यू नो दैट, 4th चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। वो मैं आपको 1 बाय 1 वीडियोस के थ्रू करवाऊंगी मैं आपको। सो हियर सम एप्लीकेशंस, ओके। यहाँ तक तो हमने जो भी हमने क्वेश्चंस दिए थे, हमने समझ लिया। अब सम एप्लीकेशन का मीनिंग सिंपली मैं इसको रीड कर रही हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। In everyday life you might have observed that the more you use a facility, okay, जितना ज़्यादा फैसिलिटी यूज़ करते हो द मोर यू पे फॉर इट, उतना ही आपको पे करना होता है, राइट। आप सपोज किसी होटल में जाते हो, जितनी ज़्यादा फैसिलिटी वहाँ होगी उतना ज़्यादा आपको पे करने होंगे। सो इन मोर इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम, अगर वहाँ पे इफ़ मोर इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम द बिल इज़ बाउंड टू बी हाई। अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती है देन बिल भी उसके अकॉर्डिंग काफ़ी हाई बिल आती है आपकी, राइट। इफ लेस इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड, अगर लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं देन द बिल विल बी इजीली मैनेजेबल, तो बिल भी आपकी इजीली मैनेजेबल हो जाती है, इट मींस आपको बिल कम पे करने होते हैं। सो दिस इज एन इंस्टांस वेयर वन क्वांटिटी अफेक्ट्स अदर। अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो अदर क्वांटिटी को अफेक्ट्स करती है, ठीक है, इन अनदर वे। So amount of electric bill depends on the quantity of electricity used. यहाँ पर जो हमने amount of electricity देखा है that is depending on electricity used, हमने कितनी जितनी electricity use करी उस पर depend करती है। So we say that the quantity of electricity is an independent variable. जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिसिटी की वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी और सम टाइम कंट्रोल वेरिएबल। सो दैट वेरिएबल इज नोन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वी कैन से कंट्रोल वेरिएबल, बिकॉज हमें नहीं पता है कि आप कितना यूज कर सकते हैं, ओके। सो उस टाइप की मतलब क्वांटिटी को आप बता सकते हो। कंट्रोल, कंट्रोल क्यों, बिकॉज वी कैन कंट्रोल ऑल्सो, अगर हम कम यूज करते हैं तो वी आर कंट्रोलिंग, if we are using it more then we are not controlling. So mainly it is controllable, so that's why it is, this variable is said to be a control variable or you can say independent variable. And the amount of electric bill, but इस quantity of electricity जो जितनी भी है उससे जितनी amount बनती है इलेक्ट्रिक बिल की is called dependent variable। अभी ये variable क्या है, ये तो dependent है, किस पे dependent है, so quantity of electricity which is used by us, okay, so which is used which is being used by us, so that is called independent, sorry, dependent variable। so यहाँ पे amount of electric bill आपकी dependent होगी and quantity of electricity क्या होगी, independent होगी, या फिर उसको आप control variable बोल सकते हो। so this relation between such variable can be shown through a graph। इसको भी हम ग्राफ के थ्रू शो करते हैं, ठीक है। so did you understand all of you the difference between independent variable and the dependent variable? यस मैम। Okay, what do you mean by dependent and independent variable here? Simply what I told you, the यहाँ पर आप simply बता सकते हो जो आपकी जो independent variable है that is independent, that is not depend on, so आप यहाँ पे like इस तरीके से आप बता, the quantity which is not depend on any other। मैम जैसे हम मैम इलेक्ट्रिसिटी बिल का मैम करते हैं मैम, जिसमें हमारा मैम उतना ही डिपेंड होगा जितना जितने हमने पैसे दिए होंगे। सो लाइक इंडिपेंडेंट का हमें सिंपली बता दोगे कि यहाँ पे द वेरिएबल विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिपेंडेंट वेरिएबल, so the variable which is depend on other quantity is called dependent variable. For example, amount of electric bill, okay, so like this you can say your definition or you can simply say the answer of dependent and independent. Okay, so some questions related to this that we are discussing now. So for instance, here the number of liters of petrol, अगर आप इसकी जगह पर लेते हो number of liters of petrol
you buy to fill a car, okay, car's petrol tank will decide the amount you have to pay. जितना ज़्यादा फिल करोगे कार में पेट्रोल उतनी ज़्यादा आपको अमाउंट पे करनी होगी। तो यहाँ पर नाउ यू से आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, थिंक अबाउट इट प्लीज। Which is the independent variable here? Number of liters of petrol or your paying amount? मैम इंडिपेंडेंट बताना है ना। Yes, firstly आपको इंडिपेंडेंट बतानी है। मैम फिल अ कार पेट्रोल टैंक। Yes, Aman, Amanti, all of you are understanding it. Ankit, Saloni, Saloni, are you understanding? What I'm conveying this, all of you are understanding or not? Just say yes or Ma'am, no. please say loud. I can't. Okay, fine. Good, Saloni. What I told you, independent and dependent variable. So the other example I'm asking to you, and the number of liters of petrol you buy to fill a car's petrol tank will decide the amount you have to pay. So here, which is the independent variable? Your number of liters of petrol or your paying bill? Ma'am, bill. Bill is independent variable. देखो बिल जो आपकी है ना वो तो Variable. नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल पे डिपेंड हो रही है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे हो सकता है? तो डिपेंडेंट हो गए। Yes, ma'am. हाँ, तो जो चीजें मैंने आपको क्या बताया, द क्वांटिटी विच इज डिपेंड ऑन समथिंग। सो अगर कुछ भी क्वांटिटी हो जो किसी अदर फैक्टर्स या अदर क्वांटिटी पे डिपेंड होती है, देन उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी। तो नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल तो आप कितने भी फिल कर सकते हो, तो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सो इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अमाउंट दैट यू आर पेइंग फॉर दिस, ओके, जितने भी आप नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल लेते हो, तो ये तो नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल पे डिपेंडेंट है, तो ये आपकी क्या होगी? से Dependent. डिपेंडेंट। एंड नंबर ऑफ Ma'am, लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यहाँ पे नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल इंडिपेंडेंट हो गई, एंड बिलिंग अमाउंट जो आपकी होगी वो डिपेंडेंट हो गई। इंडिपेंडेंट को और क्या कहते हैं इन अदर वर्ड? Control ma'am, value. control variable. 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 Very good. Now you can see the quantity and the cost here. Here the number of liters of petrol are given like 10, 15, 20, 25. Okay. So the following table gives the quantity of petrol and its cost also. Cost of petrol in rupees. If you are buying this 10 liters of petrol, then you have to pay 500 rupees. Okay. 15 liters petrol जब आप बाय करते हो तो आपको 750 देनी होती है। ओके, 20 लीटर्स पेट्रोल करते हो तो आपको 1000 देने होते हैं। 25 12,000 सॉरी 1250 रुपीज। सो हियर when you are increasing your number of liters of petrol you have to pay much more. Okay, so plot the graph to show the data। अब ये आपको क्या करनी है, इस टाइप की जो इस टाइप की जब टेबल गिवन होगी, सो दिस ऑल्सो यू नो दैट हाउ वी कैन शो इट ऑन ग्राफ। तो सिंपली यू कैन अज्यूम इट दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई कोऑर्डिनेट। आप इसको लाइक इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। तो आपकी एक्स होगी 10 एंड वाई आपकी 500 होगी। सिंपली यहाँ पे भी क्या होंगे, एक्स 15 होंगे एंड दिस विल बी योर 750। तो लाइक आप एक्स एक्सिस को यहाँ पे मैक्सिमम क्या दिख रहा है 25, तो आप 5 का डिफरेंस ले सकते हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 यूनिट्स की डिफरेंस ली गई है ग्राफ में। सो इन यूनिट्स हमने डिस्टेंस लिया है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे भी सेम वैसे डिफरेंस है। सो इट विल इजी टू यू और इट विल कन्वीनियंट टू यू टू ड्रॉ अ ग्राफ। तो 5, 10, 15, 20 एंड 25, 25 तक आपको यहाँ पे शो करनी, तो आप 30 तक ले सकते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन रुपीज विच इज गिवन इन 100। तो यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि हमने 5 लिया तो यहाँ हम लाइक 100 के टर्म्स में नहीं ले सकते हैं, बाई कोऑर्डिनेट में आप शो कर सकते हो। तो ये सारे 100 के टर्म्स में है। तो कहाँ तक गए, 1250 तक गया है, तो इट मीन्स आप 1300 तक ले सकते हो। ठीक है, फर्स्ट टू 0 to 100, 100 to 200, तो हमने 100 का हमने यूनिट लिया
and we are showing till 1300, हमने 1300 तक शो किया. So where अगर आपको वहां पर 750 या 1250 शो करने होंगे तो 750 comes under in between which class interval if we have to show 750? Ma'am, in between 700 and 800. Very good. So 700 and 800 के between में आपकी 750 आएगी. So this is how you can plot this coordinate. Okay, and 1250 comes under 1200 and 1300 के बीच में. 1300. वेरी गुड. सो आप ऐसे इसी तरीके से आपको क्या करनी है, ग्राफ को प्लॉट करनी है. सो दिस इज योर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइप ऑफ ग्राफ, एंड आई होप दिस इज आल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट. अगर कोई डाउट है तो इसमें आप मुझसे आस्क कर सकते हैं. डू यू हैव एनी क्वेरी? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. One more example I am taking here so that प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट, यू नो दैट हमने इससे पहले प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट के बारे में भी डिस्कस किया था. व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला? आई एम आस्किंग टू यू. What is the simple interest formula? Comparing quantities in that chapter, chapter 8, we have discussed this formula. No issue. Again, I'm telling you, when we have to find, when we have some principal means simply amount, some deposited, जो आप deposit करते हो. So, अगर principal given होते हैं और आपको find करनी होती है simple interest, तो formula होता है P into T into R upon 100. Okay, P T R upon 100. What is P? P is principal, T is time, and R is rate of interest upon 100. So that is the formula for finding simple interest for a year. So here, bank gives 10%. Bank ने 10% simple interest पे, okay, on deposit by a senior citizen. किसी senior citizen ने जितनी money deposit करी, उसमें bank ने 10% simple interest दिया. So draw a graph to illustrate the relation between the sum deposited and simple interest earned. कितनी simple interest earned हुई. सपोज अगर आपको कोई 100 रुपीज पे 10% का इंटरेस्ट देता है, ओके, या फिर अगर 10% का इंटरेस्ट लेते हो तो कितने रुपीज होंगे फॉर 1 ईयर? मैम फिर से कहिए ना. फॉर 1 ईयर, if someone is giving to you 100 rupees, okay, at the rate of 10%, then how much amount you have to give, return back to them after 1 year? Ma'am, 10 rupees. 10 रुपीज, बट आपने जो लिया है 100 रुपीज वो भी तो देने होंगे ना. तो टोटल कितने देने होंगे? 110. Yeah, exactly 110 rupees. So that's why I'm asking this question. आपको 100 टोटल 10 रुपीज देनी होगी. तो यहाँ पे सम कितने हैं? 100 रुपीज. तो हमने पहले अगर 10% इस पे आपको देने हैं तो इट मीन्स 10 रुपीज आपको देनी होगी. टोटल आपको कितनी देनी होगी? 110 रुपीज. वैसे अगर 200 रुपीज लेते हो तो आपको 20 रुपीज इंटरेस्ट पे करने होंगे. 300 अगर लेते हो तो 30 रुपीज पे करने होंगे. सिंपली अगर बैंक से लोन लेते हो, लाइक 100 रुपीज लेते हो फॉर 1 ईयर, तो आपको 10 रुपीज एक्स्ट्रा. तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्या करनी होगी? 100 रुपीज भी देनी होगी, एंड दिस 10 रुपीज ऑल्सो यू विल हैव टू गिव. ओके, so this is called a simple interest. Okay, the annual interest obtained for an investment 250. जो annual interest है वो total 250 क्या करी गई है? Obtain की गई है, and the investment one has to make to get an annual simple interest is 70 rupees. तो लाइक इसमें भी कुछ नहीं करनी है आपको. हमने क्या करनी है, पहले सम डिपॉजिटेड लिखा है एंड एनुअल सिंपल इंटरेस्ट. जो एनुअल सिंपल इंटरेस्ट होंगे 10% सबके हमने यूज फाइंड आउट किया है. तो 10% और एट दिस 100 रुपीज, तो 10 रुपीज देने हैं. 200 पे में 20 देने, 300 पे 30 देने. तो लाइक इस टाइप से भी आप क्या करोगे? टेबल ड्रॉ कर कर एंड देन इसकी आप क्या कर सकते हो? ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो. प्लॉट कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया है. ये एक्स एक्सिस होंगे, ये वाई एक्सिस होंगे, एंड लाइक दिस यू कैन शो ऑन द ग्राफ. इस टाइप की क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग टू यू. नाउ 15.3 एक्सरसाइज. In 15.3 exercise, all questions are same as that we have discussed so far. Okay.
Question number first I'm discussing. Draw the graph for the following table values with suitable scale for the axis cost of apple. Okay. So क्या मैं इसको draw कर कर बताऊं or you can do it yourself? हम एक एक बार बार ड्रॉ मैं कर प्रो कर Okay, okay. So I'm drawing this graph. Just one minute. Yes. 15.3 exercise. First question I'm telling you. यस मैम प्लीज से लाउड मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है Okay, okay, Barsha, your voice is actually very loud. I'm trying to tell loud. 15.3 exercise में आपकी पहले जो table है, this is your table. Okay, cost of apples here, number of apples. Please, all of you, mute your sound. This. Okay, Adya Sakti, mute your sound. Adya Sakti, please mute your sound. Yes. Number of apples and cost in rupees. This is the table which is given. मैम वीडियो बंद है Yes, ma'am. Okay, I'm sorry. So number of apples, when the number of apple is 1, cost of one apple is 5. When the number of apples are 2, cost of apple will become 10. So वैसे ही 3 होंगे तो कितने होंगे 15 होंगे. अगर each apple की cost 5 rupees is, obviously we will increase that. अगर 4 होते हैं then tell me 20 कितने होंगे 20 होंगे. अगर टेबल नहीं भी गिवन होगी तो आप लाइक अब बता सकते हो 5 होंगे तो 25. 25. ओके. सो टेकिंग यहाँ पर आपको सिंपली एक स्केलिंग करनी है. सो मैं आपको रफली थोड़ा बताती हूँ बट आपको ये प्लेन पेपर पे नहीं करना है. यू विल ड्रॉ दिस ऑल ग्राफ ऑन ग्राफ शीट. ओके. दिस इज योर एक्स एक्सिस and this is y. This will here 0. Okay. Here I am showing the number of apples. Number of apples are in order 1 to 5. So it means you can take from after this 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. इनकी जो डिस्टेंस है ना इनके बिटवीन के डिस्टेंस वो सारे इक्वल होने चाहिए. दिस इज योर नंबर ऑफ एप्पल्स. मैम वन वन गैप होना चाहिए हाँ, अब गैप कितनी भी आप ले सकते हो बट वो गैप सबकी सेम होनी चाहिए. इक्वल होनी जितने भी चाहिए यस यूनिट मैम लेते हो. या इफ आई टेक लाइक 5 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 1 नंबर ऑफ एप्पल तो आप 5 यूनिट्स ले सकते हो 10 यूनिट्स ले सकते हो. सो इट इज अप टू यू. ग्राफ में जितने भी आपके जो स्पेस होंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग. ठीक है. नाउ हियर इट इज हियर 5 10 15 20 25. तो ऑब्वियसली हम 5 5 का इंटरवल ले सकते हैं. राइट. सो नाउ आई एम टेकिंग हियर 5 10. यहाँ पर यूनिट आपकी क्या है ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हमें यही लेने हैं. हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे बट ये सारे इक्वल फॉर्म में होने चाहिए. लाइक अगर 5 की बात तो 10 ही आपको लेने हैं 10 15 क्योंकि आपने 5 का इंटरवल लिया है. दिस इज योर कॉस्ट इन रुपीज. सो हमने इसको कॉस्ट को शो कर रहे हैं एंड हियर दिस इज द नंबर ऑफ एप्पल्स. सो एक्स एक्सिस विल शो हियर नंबर ऑफ एप्पल्स एंड इट विल बी योर कॉस्ट इन रुपीज. नाउ यू से फर्स्ट हमें जो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 1 5. ओके. 2 10. 3 15. 4 20 and last will be your 525. The first coordinate you have to show here coordinates are so these are the coordinates and you have to plot on this graph. So 1 5 here this is 1 and this is 5. It means ये दोनों आप like आप dotted line से show कर सकते हो if you have any problem to show this point exactly in between.
मैम So इस this is a क्वेश्चन में तो मैम coordinate. कहीं पे मैम लाइन बार ग्राफ लिखा, लीनियर बार ग्राफ लिखा ही नहीं है। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जिस टाइप का ग्राफ ड्रॉ होगा, जिस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, आपको यहाँ पे सिंपली ग्राफ ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा मैं लिखा नहीं है लीनियर ग्राफ, तो अगर लीनियर ग्राफ ड्रॉ होगा तो हम लीनियर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर लाइन ग्राफ ड्रॉ होंगे तो हम लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं यस लिखा है। मैम। मैम मैंने So ये सारे क्वेश्चन ग्राफ में कर रखे हैं। very good. So you can send your homework, okay. Now this is 2, 10. So 2 and 10. It will here, this, here you will plot this 2 and 10. First आपकी क्या होगी 1, 5. And this also you will write. Don't forget to write this coordinate जो आप पॉइंट को प्लॉट करते हो, ठीक है। थर्ड इज योर 3 and 15. So here this is, हमने 3 के जस्ट फ्रंट में लिखा है एंड 15 के फ्रंट में, ये दोनों यहाँ पर ज्वाइन होंगे, तो लाइक 3 and 15 you can write. Next is 4 and 20. Okay, 4 and 20 here. Okay, and next will be your 5 and 25. So 5 के जस्ट सामने हमने लिखा है, लाइक जैसे हमने अभी इसको बताया वैसे ही आपको करनी है। ओके, अब इसको ज्वाइन भी कर सकते हो डॉटेड लाइन से, इमेजिनरी लाइन से, नो इशू। मैम ऐसे ज्वाइन भी करनी है? यू कैन ज्वाइन ऑल्सो। ओके, ज्वाइन करने से क्या है ना, हमें समझ में आता है कि वी मैम हैव अगर पेयर नहीं काउंट, करेंगे तो? सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ dissolve points, आप you can see कि कौन सी ग्राफ ड्रॉ हो रही है when we will join dissolve bits, then it is a linear graph. Okay, so this लीनियर is ग्राफ। how this is how you can show this table on this graph sheet. All of you understood this question? मैम हम सिंपल लाइन भी खींच सकते हैं ना? या सिंपल लाइन, बट ये जो आपकी जो फर्स्ट ड्रॉ होगी वो लीनियर ग्राफ ड्रॉ होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, you can see please question in your book and ask anyone from 15.3 exercise, because today all of you have to try this exercise. Okay, second question is also the same, distance traveled by a car. So I hope this also you will draw like first जो हमने first को बताया, but here's in some in second some questions are there. You can see in second, distance traveled by a car. Question are, how much distance did the car cover during 7:30 to 8 a.m.? See the answer, please. This is your table, and according to this table, you have to see the answer of this statement. How much distance did the car cover during this timing? मैम 40। 7:30 to 8 a.m. You can see here 7:30 to 8 a.m. तो कितने डिस्टेंस टोटल ट्रेवल हुए हैं? 80 to 120, इसके बिटवीन के डिफरेंस आप बता दो। तो 120 माइनस 80 कितने होंगे? मैम 40 होगा। 40 एग्जैक्टली। तो आप बता सकते हो 40 किलोमीटर, तो फर्स्ट का आंसर 40 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट यू से व्हाट वाज द टाइम व्हेन अ कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस इट स्टार्ट्स? व्हाट वाज द टाइमिंग? टाइमिंग क्या था व्हेन द कार हैड कवर्ड अ डिस्टेंस 100 किलोमीटर? मैम 9 AM। 200। क्या होंगे प्लीज? सलोनी, पूजा, एनीवन कैन से हियर। मैम 7:30 AM होगा। मैम 9 AM। 7:30 मैम 7:30। देविका इज आल्सो सेइंग 7:30। 100 किलोमीटर बच्चा, 100 किलोमीटर कहाँ पे? हाँ 7:30। ओके ओके, वेरी गुड। सो आफ्टर दिस आई मीन 7 to 8 AM में अगर आप मिडिल का इसका फाइंड करते हो तो 7:30 होंगे, एंड 80 to 120 में इसके मिडिल की फाइंड करोगे तो 100 किलोमीटर होंगे। तो इट मीन्स फॉर 100 किलोमीटर द टाइम विल बी योर 7:30, ठीक है। यस अमन, वेरी गुड। सबके आंसर राइट है, 7:30 होंगे। तो सिमिलर लाइक आपको क्या करना है, सेकंड में बस क्वेश्चन का आंसर बताना है। एंड थर्ड वन इज now you say this is your insert a deposit for a year. पहले तो आपको उसकी ग्राफ ड्रॉ करनी है। ओके, does the graph pass through the origin? जो आप ग्राफ को ड्रॉ करोगे तो ओके, सो इन सी यू हैव टू चेक देयर, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन? जैसे हमने लीनियर ग्राफ अभी हमने जस्ट क्या बताया, आई एम उसमें टेलिंग यू
जैसे कि आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो यहाँ पर आपको चेक करनी क्या ये जो लाइन है ये आपकी ओरिजिन से पास हो रही है नहीं हो रही है। अगर ये पास हो रही है तो आपके आंसर यस होंगे, अगर पास नहीं मैम हो हो रही है, इसका आंसर यस है। ओके, गुड गुड, वेरी गुड वर्षा, आपने सॉल्व किया है आई थिंक, इसलिए वेरी गुड। नाउ यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट फॉर ₹2500 फॉर अ ईयर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया अगर डिपॉजिट दी हुई होती है और आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी होती है, देन ओके, देन फॉर फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 रुपीज पे आपको बतानी है। मैम Can you 200। help me